Hello students, how are you all? Hope so, you are fine. Students, today I will teach you chapter number 6, The Making of a Scientist of your class 10 English textbook, Footprints Without Feet, which is written by Robert Peterson. Let's see about the author. Robert W. Peterson was born in the year 1925, United States. He died on 11th February 2006, Pennsylvania, United States. He was an American newspaper writer who later became freelance author of magazine articles and books, especially on the topics of sport and Scottish. His 1970 clearance of Negro League Baseball titled "Only the Ball Was White" was hailed by the New York Times as having recaptured a lost era of baseball history and a rich fact of black life in America. The baseball commissioner at the time, Brownie Cohen, later credited Peterson's book with having focused greater attention on the accomplishments of Negro League players, leading to their admission to the Baseball Hall of Fame. अब ये वाली जो स्लाइड है अबाउट द ऑथर, उसके बारे में हमको बॉर्न कब हुआ, उनका डेथ कब वो भी बताया गया है, फिर वो क्या प्रोफेशन में थे, फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या ज्वाइन किया वो भी बता दिया गया है। ठीक है। और उनकी जो फेमस बुक थी 1970 में उन्होंने लिखी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया था अमेरिका में, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में जो ब्लैकिश लोग थे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और स्पेशली स्पोर्ट्स में भी, जैसे कि बेसबॉल। तो बेसबॉल में जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बेसबॉल प्लेयर के साथ, वो रुक गया था, या फिर लोगों का माइंडसेट उसके वजह से बदलना शुरू हो गया था। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर नंबर 6. Richard E. Bright was received Shirley Scholar Award and the Saring-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. The story is about Richard H. E. Bright, who grew up in the town of Reading in Pennsylvania, USA. As he did not have much to do there, collecting things was his hobby. He used to collect butterflies as a child in kindergarten. Let's read how his curious child who collected butterflies went to become one of the greatest scientists of the world. अब उनको दो अवार्ड्स मिले थे। पहला अवार्ड था शर्ले स्कॉलर अवार्ड और दूसरा अवार्ड था वो थे शेरिंग प्लव अवार्ड। ठीक है। अब ये अवार्ड्स उनको बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में उन्होंने जो एफर्ट दिया था उसके लिए मिले थे। ठीक है। ये यहाँ तक बताया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे उनकी चाइल्डहुड की बात की गई है। तो यहाँ पे हमको बताया है कि वो बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करते थे, यूएसए के। तो वहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने को थी नहीं, तो उसके वजह से उनको एक हॉबी हो चुकी थी कि थिंग्स कलेक्ट करने की। तो उस हॉबी में बटरफ्लाइज कलेक्शन भी एक पार्ट था। ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके घर के पास जो किंडर गार्डन था वहाँ जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, और शायद इसी की वजह से वो साइंस की दुनिया में एंटर बड़े साइंटिस्ट की तरह पहचाने गए। यहाँ पे ये स्लाइड में उनका फोटोग्राफ दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हो उसे। नाउ लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The chapter, The Making of Scientists, is a story about the famous scientist Richard E. Bright. Richie, as his mother used to call him, was a very curious child right from his childhood. He had started collecting butterflies in his childhood, and when he was 2 years old, he had already collected all the 25 species found near his hometown. He thought it to be an end of butterfly collection until one day his mother bought
him a book named The Travels of Monarch 10. This was the turning point in his life, and he got much more interested in dealing with science. He started with tagging butterflies, which a task given at the end of the book that his mother bought for him. Then when he first entered the country science fair with a slide of frog tissue, he lost. Everybody won something, but his project did not win any prize. अब ये चैप्टर में मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके अंदर एक स्टोरी दी हुई है, अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज रिचर्ड ई ब्राइट. ठीक है, रिचर्ड ई ब्राइट नाम था उनका, और उनकी मम्मी उनको प्यार से रिची बुलाया करती थी. अब रिचर्ड ई ब्राइट के पास, वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ बहुत कुछ करने को कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक हॉबी डेवलप कर ली थी कि उनको थिंग्स कलेक्ट करने का शौक था. अभी थिंग्स में उनको जो सबसे बड़ा जो उनकी हॉबी थी वो था कि उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्शन शुरू कर दिया. अभी उन्होंने, जब वो 2 साल के थे, तब तक उन्होंने सभी की सभी 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी जो उनके घर के पास मिलती थी. ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन उनकी मम्मी बाजार से एक बुक खरीद के लाई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च 10. अभी इस बुक में सभी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई के बारे में लिखा था. ठीक है, और लास्ट में एक एक्टिविटी दी हुई थी कि सभी बटरफ्लाइज को पहचानना है और उनको टैग करना है, मतलब ये कौन सा बटरफ्लाई है वो उनको बताना था. ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी उन्होंने शुरू कर ली, और इससे उनका इंटरेस्ट जो साइंस की तरफ था वो बहुत बढ़ता गया था. ठीक है, फिर उन्होंने एक बार एक साइंस फेयर था उसमें पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे उन्होंने जो फ्रॉक के टिश्यू है उसकी एक स्लाइड प्रेजेंट की थी. तो लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि सभी के सभी दूसरे प्रोजेक्ट्स ने कुछ ना कुछ प्राइजेस जीती थी, लेकिन यहाँ रिचर्ड के प्रोजेक्ट ने कोई प्राइज नहीं जीती थी. He was sad, but also understood that to win, he needed to be real experiment and not just to take neat and clean models. अब वो दुखी तो थे, लेकिन उनको एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर उनको वो फेयर जीतना है तो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन काम नहीं करेंगे. उनको कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कुछ प्रेजेंट करना होगा. ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर उर्कुहत की हेल्प ली जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाते थे, और उन्होंने अपने सारे हाई स्कूल का टाइम उन्होंने वो प्रोजेक्ट की जो लिस्ट आई हुई थी उस पर काम करते हुए स्पेंड कर दिया. ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर फिर से फेयर आया तब उन्होंने जो फर्स्ट इस बार प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया हुआ था उसके अंदर डिस्कशन एक डिसीज का किया हुआ था जिसकी वजह से सारे कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती थी कुछ सालों के बाद. तो पहले वो मानते थे कि इसके पीछे बीटल है. ठीक है, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टडी किया, तो ऐसे उन लोगों ने पता चल गया कि इसके पीछे बीटल का कोई हाथ नहीं है. तो यही उन्होंने प्रैक्टिकली प्रेजेंट किया वो वाले फेयर में, जिसके वजह से उनको प्राइज मिली थी. फिर सेकेंड ईयर उन्होंने फिर से एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जिसके अंदर ऐसा उन्होंने कहा था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज होता है वो कॉपीड मोनार्च. तो ये चीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की थी जिसकी वजह से वो विनर डिक्लेयर हुए थे और उनको प्राइज मिली थी. जब ये तीसरा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनके साथ उनके कुछ क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स भी थे. ठीक है, अब इन्होंने इस बार किया था कि जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ना बटरफ्लाई के ऊपर, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते बल्कि वहां से हार्मोन रिलीज होता है जो एक्चुअली में उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये तीन एक्सपेरिमेंट के लिए वो विनर डिक्लेयर हुए थे जो काफी बड़े एक्सपेरिमेंट कहलाते थे. ठीक है, आप उनका फोटोग्राफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्टर उर्कुहत का. ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, with the help of sophisticated instrument at one of the labs,
he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone in the gold spots. Then one day, while looking at the photo of the chemical structure, he solved one of the biggest puzzles of life. He came to know how a cell blueprint its DNA. It was a big breakthrough and was published in magazine. He also had many other interests and also admired his social studies teacher as he was the one who used to give him new ideas. He was good at debating, public speaking, and great canoeist. He never used to win for the sake of winning or for prizes, but because he wanted to be best at whatever he used to do. It is shown in this chapter that with the right amount of curiosity, a bright mind, and the will to win for right reasons are qualities needed to be a scientist. His mother also played a big role in making him that he was. It was she who supported him throughout his journey and brought him a book, The Travels of Monarch Ten, which grossed his curiosity in the field of science. अब उनको एक बार सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का मौका मिला था एक लैब में, जहाँ पे उन्होंने जो गोल्डन स्पॉट्स थे जिसके अंदर से हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिला था। तो वहाँ पे उन्होंने वो जो केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो हार्मोन का वो देख लिया था और उसकी एक पिक्चर ले ली थी। ठीक है, अब पिक्चर को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तब जाके उनको सबसे बड़ा उनके लाइफ का ब्रेक थ्रू मिला। मतलब सबसे ज्यादा कुछ उनको ऐसा दिख गया जिनसे वो पहचाने गए और उसके बारे में मैगजीन्स में भी प्रिंट हुआ था और बहुत सारे लोग उनको जानने लगे थे। फिर इस सब के पीछे वो अपनी एसएस की टीचर को सबसे ज्यादा एडमायर करते थे क्योंकि वो उनको बहुत मोटिवेट किया करती थी। अभी वो जीतने के लिए तो नहीं जीत रहे थे, उनको बस एक ही उनकी ख्वाहिश थी कि वो कुछ भी करे लेकिन ही शुड बी द बेस्ट इन दैट। ठीक है, वो चीज में वो सबसे बेस्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ उनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी, जैसे कि डिबेट अच्छी कर लेते थे, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे थे। ठीक है, और एक ग्रेट कैनोइस्ट भी थे वो उनके साथ साथ। ठीक है, अब इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो उनकी मदर को जाता है क्योंकि वही तो थी जो उनके लिए वो मार्केट से वो बुक पॉट करके लाई थी जिसकी वजह से उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ी। ठीक है, और वो जब तक उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था तब तक वो चीज के बारे में सोचते रहते थे। तो ये जो हैबिट थी वो बुक के वजह से तो उनमें आई थी। ठीक है ना, तो ये उनकी क्रेडिट उनकी मदर को भी बहुत हद तक जाता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट के लिए क्या होना जरूरी है, तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि साइंटिस्ट होने के लिए क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए और सही है ऐसा प्रूफ करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तो ही तो वो इंसान एक साइंटिस्ट बन पाता है। ठीक है, तो ये पूरी सारी बातें हमको ये चैप्टर में समझाई गई है जो हमने पढ़ी। ठीक है, moving forward. So guys, this was the end of the chapter. How do you like our video? You can say us on the comment section. आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए। अगर आप ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर इट। एंड ऑल्सो if you like our video and want such more videos whenever we upload it, then you have to subscribe our channel. So press the subscribe button and don't forget to press the bell icon in order to get the notification whenever we upload a new video. So thank you.